Hello dear students, as we all know that from next week we are going to start our mid-semester examination, which this year we are going to take a multiple choice questions, means MCQ, online MCQ examination for our subject dynamics of machinery as per the new syllabus of GTU. Okay, so today I am going to share some important multiple choice questions which may be helpful for your examination and also for understanding this dynamics of machinery subjects. So from this example, from these multiple choice questions, it is related to the topics like flywheel, then balancing of rotating masses, balancing of reciprocating masses, particularly in the reciprocating masses, balancing of locomotives. Okay, this type of topics we are going to discuss in today's video. I will also share another video which is related to vibrations. Okay, so but today here we are going to discuss regarding balancing and this flywheel topic. Okay, so we are going to start our first question. Okay, so question number 1, first question is, energy is stored in a flywheel in the form of, like this is the particular multiple choice question related to flywheel. So as we all know that flywheel, it is a dynamic condition, moving condition, so basically it is storing the energy in this kinetic energy in the form of kinetic energy. Okay, basically in question number 2, in vehicles flywheel is placed between, there are 4 options. Okay, now basically flywheel is placed between the engine and clutch. The correct answer is this A. Next question moving, following is the functions of flywheel, मीन्स इसमें से कौन कौन से फ्लाईव्हील के फंक्शन है, तो स्टोर एंड रिलीज एनर्जी व्हेन नीडेड ड्यूरिंग द वर्क साइकिल, दिस द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील दैट वी हैव स्टडीड इन आवर लेक्चर. टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लीट फ्लक्चुएशन, ऑब्वियसली और स्पीड फ्लक्चुएशन कंट्रोल करता है फ्लाईव्हील, एंड टू रिड्यूस द पावर कैपेसिटी ऑफ मोटर, ऑब्वियसली. सो ऑल दिस अबव आर द correct functions of flywheel. So here answer is correct, answer is the D, all of the above. Okay, now application of flywheel कहाँ पे use होता है, तो here it is, flywheel is used in, there are 4 options given, punching press, drilling machine, surface grinder, milling machine. Obviously flywheel is used in the punching press. Okay, as we all know that. Okay, now generally flywheel are generally made from, now basically flywheel is made from cast iron, high strength steel and ceramics. These are the materials basically flywheel are made of. Okay, now this is important question. The ratio of maximum fluctuation of the speed to the mean speed is called. Okay, अभी क्या है, the ratio of maximum fluctuation of the speed to the mean speed. Okay, maximum fluctuation जो होगा n1 n2 divided by mean speed. Okay, so answer, correct answer is the coefficient of fluctuation of speed. Same question may be asked for coefficient of fluctuation of energy. Okay, speed की जगह energy आएगा तो option answer will be coefficient of fluctuation of energy. So 2 questions may be asked same in same way for speed and energy. Okay, both we have studied in our lecture. I have correctly explained you regarding this coefficient of fluctuation of speed. It is denoted by CS. Okay, now the reciprocal of coefficient of fluctuation is called as, now this is also a very good question, very important question. अभी जो coefficient of fluctuation of speed हमने देखा वो क्या था, maximum fluctuation divided by mean speed. अभी उसका उल्टा कर दे, mean speed divided by maximum fluctuation ऐसा कर दे तो it is denoted by coefficient of steadiness. Remember this thing, reciprocal of coefficient of speed of fluctuation of speed is coefficient of steadiness. Okay, now the next question is regarding this balancing of reciprocating masses, balancing of a locomotive. Okay, the magnitude of swaying couple due to partial balancing
The primary unbalanced force in locomotive is, now this is given to you, but you know the equation. For this solving this question, we should know the equation of swaying couple. Now in theory lectures we have studied and we have defined the equation. So equation of swaying couple equation is like, this equation is like plus or minus a upon root 2 into bracket 1 minus c m omega square into r, ऐसा कुछ इक्वेशन था, ठीक है. Means a upon root 2 1 minus c m omega square into r, where a is the distance from the center line, distance of cylinder from the center lines. So जो swaying couple का equation, it is directly proportional to the distance between the center lines of the two cylinders. So correct answer here is D. Okay, बाकी जो 1 minus c is the constant, okay, और m omega square into r, m is the mass, omega square, omega is the radian per second angular velocity, and r is the रेडियस. तो पर्टिकुलरली ए डिस्टेंस के ऊपर वो आधार रखेगा. सो ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन. ओके, सो करेक्ट आंसर इज डी हियर. सो फॉर सॉल्विंग द एग्जाम multiple choice question of balancing of reciprocating masses, you should remember the equation of tractive effort, swaying couple as well as hammer blow. ये तीनों का इक्वेशन तो आपको आना ही चाहिए. इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, द पार्शियल बैलेंसिंग मीन्स, और पार्शियल बैलेंसिंग कहाँ होता है, क्यों होता है, उसका मतलब क्या होता है. सो ऑप्शन इज पार्शियल बैलेंसिंग इन रिवॉल्विंग. ओके, रिवॉल्विंग मासेस इज ऑलवेज कंप्लीटली बैलेंस, वो हमको पता है. बट ऑप्शन नंबर बी, बैलेंसिंग पार्शियली द रेसिप्रोकेटिंग मासेस, वी हैव स्टडीड, वी आल्सो नो दैट रेसिप्रोकेटिंग मासेस आर ऑलवेज partially balanced, not completely balanced. Okay, now next question. If C is the fraction of reciprocating parts of the mass m, mass m to be balanced per cylinder of a steam locomotive, gradients r, angular velocity, speed w, omega, sorry, distance between central and two cylinder is a, the magnitude of maximum swaying couple. अभी आगे जो हमने क्वेश्चन किया वो थोड़ा ट्विस्ट करके हुआ, अलग तरीके से एक क्वेश्चन पूछा है. तो इक्वेशन क्या है वो हमने आगे डिस्कस किया. ए रूट टू बराबर रूट टू एम आर ओमेगा स्क्वायर ए 1 माइनस सी, जो आगे हमने डिस्कस किया था, ठीक है. इट इज ए अपॉन रूट टू. ओके, सी डिवाइडेड बाय रूट टू है, ठीक है. ए अपॉन रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर. सो बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन अ लोकोमोटिव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स along the perpendicular line of stroke is known as, अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा है आपको, along the perpendicular line of the stroke. So always the perpendicular maximum force तो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं in reciprocating parts balancing में, hammer blow बोलते हैं. So correct answer is the hammer blow. अभी इसकी जगह perpendicular to the line of stroke की जगह along the line of stroke आता, so answer would be tractive force. इतना डिफरेंस हो जाता है, ठीक है. along the line of stroke होता तो क्या होता आंसर, ट्रैक्टिव फोर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्शियल बैलेंसिंग मीन्स, ये थोड़ा ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, बैलेंसिंग पार्शियली द रेसिप्रोकेटिंग मासेस. सो सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आया तो रेसिप्रोकेटिंग मासेस आंसर आएगा. अभी स्वयं क्वेश्चन सेविंग कपिल का हमने डिस्कस किया, ऊपर वही क्वेश्चन है, बट उसके नीचे वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. The swaying couple is maximum or minimum when the angle of inclination of the crank to the line of screw theta is equal to. So अभी जो इक्वेशन हमारा बनेगा बराबर, उसमें क्या होगा, इक्वेशन प्लस और माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा ऐसा आएगा, ठीक है. अभी उसमें वैल्यू हम क्या रखेंगे तो उसका मैक्सिमम आएगा. सो आंसर इज 45 डिग्री एंड 225. कोस और साइन की वैल्यू उसमें पुट करेंगे हम स्वइंग कपल के इक्वेशन में, तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, मैक्सिमम स्वइंग कपल हमको मिलेगा. सो इट्स आंसर इज 45 डिग्री एंड 225 डिग्री. डी इज द करेक्ट आंसर. सेम वे ट्रैक्टिव एफर्ट का हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड किया तो उसका इक्वेशन भी आएगा. ओके, व्हाट इज द इक्वेशन, उसमें हमने देखा a डिवाइडेड बाय रूट टू, इसमें a डिस्टेंस नहीं आएगा ट्रैक्टिव एफर्ट में. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट इज प्लस और माइनस रूट टू 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है. ऐसा है तो हम एक बार इक्वेशन लिखते हैं.
So equation is like this. प्लस और माइनस √2, कलर चेंज करना पड़ेगा तो ये हमको दिखेगा. सो इक्वेशन इज √2 1 माइनस सी, ओके, इतना आएगा, फिर इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेशन आएगा, इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर. अभी इसमें √2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर. अभी उसके अंदर आगे क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा. जनरलाइज इक्वेशन इज कोस थीटा माइनस साइन थीटा. अब इक्वेशन में ऊपर लिखता हूँ वापस एक बार, √2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वेयर. अभी इंटू ब्रैकेट आएगा, इधर मैं लिखता हूँ सी माइनस एस मीन्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा इक्वेशन आएगा. अभी कोस थीटा की जगह हम जो वैल्यू रखेंगे उसके हमारा ये मैक्सिमम इक्वेशन इतना आना चाहिए. सो उसमें हम वैल्यू रखेंगे कितनी, 135 और 315 रखेंगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. ओके, सो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज द डी. ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये ब्रश ऑफ कर देते हैं वापस. ओके, गुड. In order to have the complete balance of the several revolving masses in a different plane, ओके, तो क्या होना चाहिए, बोथ द रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मस्ट बी जीरो. हमने कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमने सोल्व किए, रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लान्स. डिफरेंट प्लेन में जो रिवॉल्विंग मासेस रोटेट होते हैं तब उसका क्या करता, हमको दोनों फोर्स कपल पॉलीगॉन एज वेल एज फोर्स पॉलीगॉन दोनों ड्रॉ करके हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन लाते हैं. सो ऑब्वियसली इट इज रिजल्टेंट फोर्स एंड कपल मस्ट बी जीरो. दिस इज द करेक्ट आंसर, इज ऑप्शन सी. Good. Okay. Often an unbalance of force is produced in a rotary or reciprocating machine due to, basically it is the inertia forces. Due to inertia forces always there is a occurrence of unbalanced forces. Okay. Now let the disturbing mass be 100 kg and the radius of rotation is 20 centimeter and the rotation speed is 50 radian per second. Then calculate the centrifugal force in kilonewton. Now what is the generalized equation of centrifugal force? It is mr omega square. M is the mass, r is the radius and omega is the angular velocity. तीनों चीज जो है वो आपको इधर दी गई है. ठीक है, सभी चीजें आपके पास है. सिंपली आपको इक्वेशन में वैल्यू रखनी है. बट 20 सेंटीमीटर है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर, 0.20 मीटर. सो इट इज 100 इंटू 0.20 इंटू 50 इंटू 50. ओमेगा स्क्वायर है इसलिए 50. सो द करेक्ट आंसर इज बी. ऑल्सो लिखा है, बाद में याद रखना, शांति से पढ़ना. देन कैलकुलेट द सेंट्रिफिकल फोर्स इन किलो न्यूटन में हमको फाइंड करना है. सो करेक्ट आंसर इज 50. आप कैलकुलेशन करके देखेगा तो आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, द अनबैलेंस प्राइमरी फोर्सेस इन द रेसिप्रोकेटिंग इंजन आर बैलेंस पार्शियली, सबको पता है. ओके, नाउ इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन यूजुअली ब्लैंक ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग मासेस आर बैलेंस. ओके, जो सी फ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन में भी हमने देखा ट्रैक्टिव एफर्ट स्वेइंग कपल में सी 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर. वो सी क्या है, इट इज दी पार्शियल बैलेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास. कितना बैलेंस होगा, तो सी की वैल्यू जनरली रेसिप्रोकेटिंग मासेस में क्या होती है, इट इज दी 2/3 ऑफ पार्ट. सो करेक्ट आंसर इज सी 2/3. ओके, विच इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इन अ लोकोमोटिव हैविंग क्रैंक एट राइट एंगल. सो 2 सिलेंडर जो होते हैं एक दूसरे के 90 एंगल पे क्रैंक होती है उसकी. ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास. अभी रेसिप्रोकेटिंग मास है, कोई इंजन में रेसिप्रोकेटिंग रिवॉल्विंग दोनों मास है, तो उसमें पार्शियल अनबैलेंसिंग होगा तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे होगी, अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स पे होगी, सेकेंडरी फोर्स पे नहीं होगी. कहाँ पे होगी, इन अनबैलेंस प्राइमरी फोर्स. ओके, द अनबैलेंस प्राइमरी कपल ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मासेस ऑफ ईच सिलेंडर इज गिवन एज. तो इक्वेशन फोर्स क्या क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, उसकी जगह क्या आएगा, एम आर एल. एल इज द डिस्टेंस, ओमेगा है स्क्वायर कोस थीटा. तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए. गुड. नेक्स्ट, द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू द 2 सिलेंडर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक. आगे हमने हेमर फ्लो में डिस्कस भी किया था ये क्वेश्चन. सो इट इज अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज, इट इज बेसिकली नोन एज ट्रैक्टिव फोर्स और ट्रैक्टिव एफर्ट, दोनों बोल सकते हैं हम उसको. ठीक है,
Next, find the maximum value of tractive force in newtons from the following data: m, ओमेगा और रेडियस और c सब कुछ दिया गया है। आपको इक्वेशन रखना है ट्रैक्टिव फोर्स का, प्लस और माइनस √2 1 - c m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। वैल्यूज रखोगे आप, यू विल गेट द वैल्यू ऑप्शन ए। सेम वे स्वेइंग कपल का भी आपको फाइंड करना है, तो वो भी आप उसी तरह से आप फाइंड कर पाओगे। उसका इक्वेशन क्या होगा? a अपॉन √2 1 - c m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सो दोनों की वैल्यूज आप इजीली फाइंड कर पाओगे। ओके, इक्वेशन हम लिखना है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका भी हम स्वेइंग कपल को एक बार लिख लेते हैं। सो इट इज़ a डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, इंटू ब्रैकेट 1 - c m r ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द a। So a upon √2 1 - c m r omega square. So this is the equation of swaying couple. इसमें सभी वैल्यूज आप रखोगे, so you will easily get the answer. ठीक है, good. Okay, next question, the axis of now some basic question, 1 or 2 questions related to gyroscope. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके रिलेटेड, इनके रेफरेंस से इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिड एग्जामिनेशन में आएंगे। दिस आर दी सम सैम्पल एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल्स, जिसके ऊपर से आपको आइडिया आएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट सब एग्जाम्पल्स जो हमने सब एमसीक्यूज अभी आज पढ़े देखे हमने, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, नाउ सम बेसिक एमसीक्यूज ऑफ गायरोस्कोप प्रिंसिपल। ओके, so axis of precision is खाली जगह to the plane in which the axis of spin is going to rotate। बेसिकली हमने वो पढ़ा था कि 90 डिग्री पे, अभी एरोप्लेन में भी देखा था हमने 90 डिग्री टर्न लेना है, उसका गायरोस्कोपिक कलर का प्रिंसिपल भी देखा था। सो एक्सिस ऑफ स्पिन है और एक्सिस ऑफ प्रिसिशन है, बोथ आर एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, नाउ देयर इज अ इक्वेशन ऑफ कपल। ओके, जो भी हमने देखा था, अ डिस्क इज स्पिनिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड अबाउट एन एक्सिस ऑफ स्पिन। द कपल अप्लाइड टू द डिस्क कॉजिंग प्रिसिशन। जो प्रिसिशन करने के लिए हम कपल अप्लाई करेंगे, उसका इक्वेशन क्या आएगा? इट इज जनरलाइज इक्वेशन, C इज इक्वल टू I ओमेगा ओमेगा P। I इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पिनिंग डिस्क, एंड ओमेगा P इज द स्पिनिंग डिस्क का ओमेगा P क्या होगा? इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। कपल, अप्लाइड कपल का इक्वेशन क्या होगा? C इज इक्वल टू I ओमेगा ओमेगा P। So these are the some important questions that we have discussed related to dynamics of machinery for B 5th semester as per new syllabus of GTU. We have covered 2 topics today, flywheel and balancing। Balancing के अंदर 2 topics, सब topics cover किए, balancing of rotating masses and balancing of reciprocating masses। तो आशा रखता हूँ आप सबको काफ़ी अच्छा नॉलेज आप मिला होगा आज MCQ कैसे सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स। ओके, सो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो ध्यान से देखना है। सभी एग्जाम्पल्स जो है आज भी देख लेना एक बार, और एग्ज़ाम के अगले दिन भी एक बार रिवीजन के तौर पे भी ये वीडियो देख के सभी एग्जाम्पल देख लेना। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, you can email me, you can also contact me via WhatsApp also, you can ask me any questions if you have। Okay, thank you so much, have a nice day, stay safe, stay healthy in this COVID-19 situation। Thank you so much। Okay।